Hi students, I am Mohammad Sadehori, the biology sir, and today we are going to start the topic in that the lab activities there, the lesson name is nutrition. So here in the nutrition you have seen different topics, for example photosynthesis, autotrophs, heterotrophs. So while you are studying about photosynthesis, you need to know there are some experiments which will be very helpful to us to understand the photosynthesis process. So for example here, light is necessary for photosynthesis, we have to see. Carbon dioxide is essential for photosynthesis, we have to see that experiment also. So before that, first we should know what is photosynthesis. So photosynthesis, it is a process in which the sunlight will be taken as an energy source for the green plants. So in the green plants, if you see, there are so many green leaves. So in that leaf, if you see the uppermost layer, that leaf will be very broad, so that the sunlight should be going very far and the sunlight should be trapped by that chlorophyll area of the leaf. So here, you know that without carbon dioxide, the plant will not survive. So according to that, we are seeing this activity which is also known as Moll's half-leaf experiment. So by the name only you can easily understand half-leaf. Here we are using only half part of the leaf. So whenever if you are doing the experiment, you should remember the 5 headings. Number 1, aim, यानी हमारा मकसद क्या है, why we are doing experiment. Number 2, apparatus. तो apparatus बोलो, materials required बोलो, एक ही बात है, यानी क्या क्या सामान, क्या क्या materials अपने को इस्तेमाल में आ रहे हैं. Number 3, procedure. Step by step, क्या एक के बाद एक प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है. Then number 4, observation. By planning all these things, what you will observe. ये पूरा कर देने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं देखना. Then next, लास्ट हेडिंग इज रिजल्ट, क्या नतीजे पे पहुंचे. मगर ये मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में और एक चीज आपको एक एक्स्ट्रा ये याद रखना है, प्रिकॉशंस. तो पहले हम देखेंगे हमारा मकसद क्या है, एम. तो हमारा एम है, जैसा कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा तो कई बार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल ही विल गिव दिस डायग्राम एंड ही विल आस्क सम क्वेश्चंस. सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चंस ओनली वी हैव टू आंसर इट. So we will see all that in detail. तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता, what materials are required to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis? What procedure we need to follow? क्या तरीका हमको अपनाना चाहिए? What do you understand by this experiment? यानी ये क्वेश्चन में 3 हिस्से आ जा रहे हैं आपको. Materials required मतलब apparatus, then procedure step by step, then understand आप क्या समझे मतलब आप क्या ऑब्जर्व करें. तो एक बिल्कुल सिंपल रहता, क्वेश्चन में से ही हमको कॉपी करना रहता. टू प्रूव दैट, हमको साबित करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बाय मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. यानी हमको साबित करना है कि मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की मदद से बगैर कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता प्लांट, स्टार्च नहीं बना सकता. तो अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड बोलो, apparatus बोलो, एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज. सो इन दैट वी आर टेकिंग वाइड माउथ बॉटल, यानी बड़े मुंह वाला, थोड़ा चौड़ा मुंह है ना उसका, नॉट ए नैरो बॉटल, नैरो माउथ बॉटल, वाइड माउथ बॉटल. देन आफ्टर दैट वी आर टेकिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, K पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. देन आफ्टर दैट स्प्लिट कॉर्क मींस we are taking the cork, यानी कैप के अंदर जो हो रही उसमें बीच में ऐसा पर कट बना रहे ताकि वो कट की मदद से लीफ को आपको हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड रखना है. तो स्प्लिटेड कॉर्क ले रहे हैं. देन आयोडीन सॉल्यूशन. whenever if you are hearing this word iodine solution, you should remember that iodine solution is used to test the presence of starch. यानी आयोडीन सॉल्यूशन एक ऐसा फार्मूला है, समझो वो स्टार्च है क्या नहीं मालूम करने का फार्मूला उसमें है. तो आयोडीन सॉल्यूशन की खासियत क्या है, जैसा कि इससे पहले के एक्सपेरिमेंट्स में आप ऑलरेडी रीडर में पढ़ चुके, जैसा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ. तो जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे लीफ पे, वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज होता. इफ दैट लीफ इज गेटिंग changed into blue black color,
definitely the starch has been formed. So that's why we are taking the iodine solution to know the presence of starch. Then de-starch plant. This is also very important. You should remember that de-starch plant means we are taking a potted plant and keeping that potted plant in darkness for 1 week. तो एक हफ्ते तक अंधेरे में रख रहे हैं, बगैर सनलाइट के, बगैर पानी के अपन अंधेरे में रख रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं डी-स्टार्च प्लांट. तो वैसा प्लांट ले रहे हैं, नॉर्मल प्लांट नहीं ले रहे. नाउ यू गॉट द points of materials required as well as the aid. Now we are going to see what will be the procedure, what are the step-by-step things which we have to follow for the Moles-Hartley experiment. Now arrange the apparatus as shown in the figure. So here we are seeing by this diagram we can easily understand how the procedure is going to follow. So take a wide mouth transparent bottle. We are taking one bottle. The mouth should be very wide. Now after that what we are doing? Put potassium hydroxide solution in the bottle. So approximately 5 to 10 ml of KL solution we are taking in this bottle. Okay, got it? Now potassium hydroxide. Why, sir? The question will arise in our mind. Why we are taking KL solution? दूसरा क्यों नहीं ले सर? वो ही स्टेप ले रहे. Reason. Potassium hydroxide absorbs carbon dioxide in the water. तो जितना भी अंदर अगर मिसाल के तौर पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा रह गया तो ये केवल सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता, जज्ब कर लेता. जैसा सूखी जमीन में अगर आप पानी डालो तो कैसा एब्जॉर्ब होता, वैसे जितना भी अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा. बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा मगर बॉटल के अंदर केवल सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं रखी जा सकती. नाउ इंसर्ट स्प्लिटेड कॉर्क इन द माउथ ऑफ द बॉटल. तो एक कैप जो उसको लपन लगा रही उसमें बीच में कट बनाना है, वो कट बने वाला कैप अपन जैसे इसको लगा दे वाइड माउथ बॉटल. सो जस्ट नाउ यू हैव सीन हाउ वी हैव applied a splitted cork on that wide mouth bottle. So from that splitted cork, we are inserting one half of the leaf. And one more thing you have to remember in this activity and in this diagram, the leaves should be narrow. Okay, so that narrow leaves will be inserted into the bottle. If you are taking a wide leaves, that leaf will be not inserted through this bottle. तो इसलिए आपको जहन में रखना पड़ेगा कि जो भी ये लीव्स यहाँ पर ले रहे पॉटेड प्लांट के वो नैरो, लंबे और पतले रहना है, लॉन्ग एंड नैरो लीव्स. चलिए अब उसकी मदद से वो डी-स्टार्च प्लांट का पत्ता अपन क्या करें, स्प्लिटेड कॉर्क की मदद से, समझे आप, into the transparent bottle containing potassium hydroxide. Half leaf should be inside, half leaf should be outside. Okay, leave the plant in sunlight. Now after doing all this thing, after applying all the planning on this experiment, you have to keep in mind that the support should be there for the bottle, so that the bottle should not be fall into the ground. तो गिरना नहीं बोलने पर थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे रही. अब ये पूरे सेटअप को बगैर डिस्टर्ब करे 3 to 4 hours you should keep this whole apparatus or whole setup for 3 to 4 hours in sunlight. Before starting this activity, what we have done, we have taken this plant as a de-starch plant. तो एक्टिविटी शुरू होने से पहले अपन क्या करें, इसको de-starch करें, 1 week तक अंधेरे में रखें. मगर जब ये पूरा सेटअप तैयार हो गया, अब क्या करना है, आप ये सेटअप को 3 to 4 hours सनलाइट में रखना है. Now, after a few hours, कुछ घंटे के बाद, test this leaf and other leaf of this plant for starch. So just now I have mentioned that with the help of iodine solution we are testing the leaf for starch. यानी iodine solution छोटे से बाउल यानी कटोरे में लेके उसमें पूरा iodine solution डालने के बाद ये जो लीफ है अपन उसको डिटैच करके बॉटल से बाहर निकाल के उसके अंदर डाल के चेक करना है. ओके ना सर. तो जैसा कि अभी हम देखें कि इसको सपोर्ट के लिए हम क्या करें, लकड़ी का टुकड़ा या एक ईंट ब्रिक वी आर यूजिंग ताकि वो हैंग होके गिरना नहीं. अब जब ये पूरा जो सेटअप तैयार हो गया, आप 3 to 4 hours रख दिए. नाउ वी हैव टू डिटैच द लीफ एंड वी शुड टेक दैट लीफ आउट ऑफ द बॉटल. देन वी हैव टू कीप आयोडीन सॉल्यूशन इन वन बाउल एंड दैट लीफ शुड बी टेस्टेड in the iodine solution for the presence of starch. So
व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यानी जब पत्ते को आप डुबा के आयोडीन सॉल्यूशन में बाहर निकालेंगे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, जो भी हिस्सा बॉटल के बाहर में था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। व्हाई सर? बिकॉज दैट पार्ट फॉर्म्ड स्टार्च। सो due to the presence of starch, that part is converting into blue black color, means here photosynthesis process हुआ वहां पर। मगर सर the remaining part which is inside the bottle, अब जो हिस्सा पत्ते का अंदर था, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black color, उसमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं आएंगे, जो कलर था वही रहेगा। So कहीं सर because this part does not get carbon dioxide as it is absorbed by KO solution, तो उसको सनलाइट बराबर मिली, पानी भी बराबर मिला, ग्रीन कलर का भी था, मगर एक चीज नहीं मिली, वो था कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमें फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका। बाहर का हिस्सा स्टार्च इसलिए बनाया, उसको सनलाइट भी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, ग्रीन कलर था, पानी, हर चीज मिली उसको। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने की वजह से उन्हें ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं हुआ। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता था तो पूरा लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना था, या नहीं तो पूरा जैसे का वैसे ही रहता था। मगर जिस हिस्से पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला वही हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर चेंज हुआ, मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं, हम ये नतीजे पे पहुंच रहे हैं। क्या नतीजे पे? दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली प्रूव्स दैट, समझे आप, कोई शक शुबा की बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, प्रिकॉशन। पहला प्रिकॉशन, ये जो लीफ है बॉटल के अपन अंदर डाल रहे हैं, दैट लीफ शुड नॉट टच द KOH सॉल्यूशन, थोड़ा ऐसा गैप रहना उसमें। नंबर 2, द स्प्लिट कॉर्क मस्ट बी एयर टाइट, यानी इसको अच्छा फिक्स लगाना अपन। अगर ये फिक्स नहीं रहा तो फिर बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता, फिर आपके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो जाती। तो इसलिए उसको अच्छा एयर टाइट, थोड़ा अतराफ उसके वैसलीन या ग्रीस लगा के हम उसको एयर टाइट रख रहे हैं। इस वजह से ये प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना है, ठीक। ओके स्टूडेंट, गॉट द पॉइंट। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी मोल्स-हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स and subscribe our channel and like our videos. Okay, thank you students.